Just feel the pain of these malnourished children. The relentless struggle against diseases in these old eyes, and the tough struggle of this mother through a frail body to fight with the diseases. This is not fiction, but a reality of the rural and Vanvasi areas, where even today the basic amenities of health are meager and scanty. Thousands and crores of rupees are spent by the government every year in India on healthcare facilities, but the main budget is spent only in big cities. Reality is that the absence of medicines and proper awareness is the cause of phenomenally high mortality rate of women and children in rural and tribal villages of India. And this stares as a big challenge in the eyes of any civilized society. Keeping all these problems and challenges in mind, with the mission of Healthy India, Capable India, the Arogya Foundation is marching ahead by providing services in rural and tribal Bharat. आरोग्य फाउंडेशन एक एकल मूवमेंट का एक पार्ट है जो कि दूर दराज क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में और दूसरे गाँव में जहाँ के अदर NGOs पहुँच नहीं पाती है, उसमें हेल्थ केयर के लिए एजुकेशन देने का काम कर रहा है। और इस बार हमने अनीमिया कंट्रोल का प्रोग्राम सभी क्षेत्रों में लेने का निर्णय किया है। वैसे और क्षेत्रों में हमने वहाँ के आरोग्य सेविकाओं को ट्रेनिंग देने का काम किया है। Villages are the soul of India, and that is why the Arogya Foundation started its movement of health awareness in the villages. The workers of Arogya Foundation were experiencing the wrath of deadly diseases in the distant and tribal villages. Consequently, it was decided that every woman from every concerned village was trained in health education so that the whole village can be made aware about health. Women, infants and girls are mostly affected by diseases in the villages and rural areas. Improper dietary habits, malnutrition and ill awareness about health are the possible reasons for the cause of anemia, lack of blood in India. After extensive research, the foundation found it proper to start the anemia control program in the far-flung and remote areas of India. आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया की योजना के अंतर्गत हमने एक एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम चलाया। इसके अंतर्गत देश के हमने 3 प्रांतों के 90 गाँव का चयन किया है। उसमें आरोग्य संयोजिका के द्वारा उनको गांव में स्वास्थ्य के प्रति हम कैसे जागृत हों और हम अपना खान पान कैसे ठीक रखें। महिलाओं में एनीमिया सबसे अधिक पाया जाता है। उसका एक कारण है कि गांव में छोटी उम्र में बच्ची की शादी कर दी जाती है और शादी के बाद वो छोटी उम्र में ही माँ बन जाती है, तो उसका ब्लड लॉस सबसे ज़्यादा होता है और ब्लड उसके अंदर बनता नहीं है। तो हम उसको समझाते हैं कि जो अपना खान पान है आप इसका सुधार करिए। जो जैसे आपके गांव में उपलब्ध चीज़ें हैं, गुड़ चना है, पालक का साग है, चुकंदर है, ऐसी चीज़ें खाइए जिससे कि आपके अंदर लौह तत्व जाए और लोहे के बर्तन में आप अपना खाना बनाइए। इसका एक प्रभाव भी पड़ा है, लोगों में अंतर आया है कि पिछले 6 महीने के हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं तो लोग जागरूक हुए हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति। और हमारा भी उद्देश्य है कि अगर हमको समाज को स्वस्थ रखना है तो उसको जागृत करना होगा, उसको जागरण करना होगा, हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर उसको ध्यान दिलाना होगा। The foundation keeps on organizing free health camps. Free medicines are distributed and the examination of the patients is carried out by specialist doctors in these camps. The foundation is committed to eradicating the problem of anemia among women by utilizing the locally available resources through such free health camps. महिलाओं की मृत्यु का भारत में पहला कारण है सेप्टिक, जो प्रसूति के टाइम पे, प्रसव के टाइम पे है सेप्टिक। और सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉज इज एनीमिया, खून की कमी, जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। और हम लोग वही हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन कर रहे हैं, हर महिला का गांव में हम करेंगे, एक गांव में, और उसके बाद में उसको जागरूक करेंगे कि क्या खान पान उसको खाना चाहिए, क्या एहतियात बरतना चाहिए। और उससे रिलेटेड जो भी बीमारी है, जैसे कि कीड़ा है, अगर पेट में कीड़े हैं तो वो खून नहीं बनने देता, तो अगर उसको जागरूक भी है वो अपने खान पान के बारे में, तो कई बार जो पेट में कीड़े होते हैं वो खून में बढ़ोतरी नहीं होने देता और उसका ये जो स्टोर है धीरे धीरे कम हो जाता है और अल्टीमेटली जाके उसकी मृत्यु होती है।
जब हम लोग उसका ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो लोग ज़्यादा जागरूक होते हैं। इससे पहले तो उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे में कोई एनीमिया क्या चीज़ है, खून की कमी है या इससे क्या नुकसान होते हैं। उसको न्यूट्रिशनल हेल्थ टॉक जब देते हैं, जागरूक करते हैं, उसको बताते हैं कि ये लक्षण है और इसके ये नतीजे होंगे, तो वो लोग हमें ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। जो लड़कियों को हम लोग ट्रेन कर रही हैं वो घर घर में जाएंगी, वो उनको ग्रुप में उनको हेल्थ टॉक देंगी, उनको बताया जाएगा कि भी ये लक्षण है, इससे ये नुकसान है। अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम घर घर पहुँच के उसके बारे में जानकारी देते हैं। और वो जानकारी देने के बाद जब हम हेल्थ कैंप लगाते हैं, जब उनको हम अपने पास बुलाते हैं कि देखिए तुम्हारी खून की जांच हो रही है और इसमें तुम्हारा खून में इतनी कमी है, तो वो लोग हमें कोऑपरेट करते हैं। उनको बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाती है और उनको बहुत अच्छा लगता है कि कोई हम तक आया, पहुंचा और हमको इसके बारे में जानकारी दी। Thousands of rurals and Vanvasis have been benefited by programs organized by the Arogya Foundation of India. The anemia control program being run for women has shown very promising results. Come, let us all join hands with the Arogya Foundation, which is serving the villages and Vananchals of India in the field of healthcare.